वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। सुहानी हैज प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली। स्टेज की तरह से खुला है। Suhani, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay. You may start your presentation. Okay, ma'am. Jai Hind, ma'am. Jai Hind, everyone. आवाज जा रही है मैम? Yes, Jai Hind, Suhani. You may start. Okay. Today is my topic ephedra, vegetative structure. इंडेक्स इसका है इंट्रोडक्शन, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड रेफरेंसेस. You can see here, this is ephedra plant. So I have edited your slide a bit. Thank you, ma'am. It's fine. But you have prepared nicely. So these are plants of ephedra. You can see it is also called as Chinese ephedra or mahuang. Because basically it is a Chinese native. And it appears like a stalk. और आगे अब सुहानी बताएगी. Yes, सुहानी. Introduction of ephedra. Ephedra is a genus of gymnosperm herbs. Its only extant genus in its family Ephedriaceae and order Ephedriales. The various species of ephedra are widespread in many lands, native to southwestern North America, southern Europe, northern Africa, southwest and central Asia, northern China, and western South America. Classification of ephedra. Kingdom Plantae, clade Trachyophytes, division Gnetophyta, class Gnetopsida, order Ephedriales, family Ephedriaceae, genus Ephedra. Distribution. The ephedra plant belongs to Gnetum family, Gnetaceae. It is upstanding brushy bush that can grow up to 16 centimeter high. Ephedra is an evergreen shrub-like plant native to Central Asia and Mongolia. It also grows in the southwestern United States. It is also called commonly as giant pine, giant fir. This is only genus in the family Ephedriaceae.
वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा। सुहानी, वॉइस नहीं क्लियर आ रही, बाकी लोगों को आ रही है? नेटवर्क इशू होगा क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैम नहीं आ रही है मैम। हाँ अब आ रही है। हाँ सुहानी ठीक है बेटा, यस अब आ रही है। अरे यहाँ ठीक है। 8 species of Ephedra species are Ephedra sexatilis, Ephedra foliata, etc. These species are distributed in dry parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, and parts of Kashmir to Sikkim. Vegetative structure of Ephedra. The stems are green and photosynthetic. The leaves are opposite or ovoid. The scale-like lips fuse into a seed at the base, and this often sets soon after development. There are no resin canal. The plants are mostly dioecious with the pollen stroke 1 to 10, each consisting of a series of decussate bracts. The pollen is furrowed. The female strobili also occur in whorls with bracts which fuse around a single ovule. There are generally 1 to 2 yellow to dark brown seeds per strobilus. So हर स्ट्रोबिलस में 2 येलो टू डार्क ब्राउन सीड्स आर प्रेजेंट. Stem. Like Equisetum, the stem is green, ribbed, branched, fluted, and differentiated into nodes and internodes. It performs the function of photosynthetic and may be called as phylloclade. The branch arise from the axillary buds and are therefore in pairs of threes or of fours according to the number of the scaly leaves at the nodes in different species. The branch are also green and differentiated into node and internode. ये आप देख रहे हैं ना, इसमें इस साइड में दिया है नोड्स और इंटरनोड. ये नोड्स हैं जो डार्क कलर की, और ये जो लॉन्ग पोर्शन होता है बीच का 2 नोड्स की, इनको इंटरनोड कहते हैं. और एक जगह से जनरली 3 ब्रांचेस राइज होती हैं एज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लीव्स. Internal structure of stem. The stem has ridges and furrows, so it has a wavy outline in transverse section. First, epidermis. Stem is covered by heavily cutinized epidermis. The epidermis has stomata. They are present in pits in the region of furrows. A group of sclerine chimatous cell is present below the epidermis in the region of each ridge. Yes, second cortex. Second cortex is it is formed in chimatous cell. These cells have a chloroplast. Thus, the cortex of stem is the main photosynthetic tissue of Ephedra. The cells of peripheral region of the cortex are loosely arranged and form palisade layer. The cells in the inner region of the cortex form a spongy tissue. Third, stele. The central part of the stem is stele. It is surrounded by endodermis. White teeth is present in the center of the stele. The vascular bundles are collateral and indarse. They form a ring around the teeth. The vascular bundles form a continuous ring due to narrowness of medullary rays. The xylem in Ephedra has true vessels like angiosperms.
The phloem consists of the usual phloem parenchyma and the seed tubes, but they are without any companion cells. Secondary growth occurs due to the activity of cambium. It produces prominent annual rings. Fourth, cork. Phallogen cork cambium is produced in the older stem. Its form periderm. The outer tissue of periderm are transformed into the bark. Yeah. Secondary growth is present in ephedra. This is young stem. It is showing vascular tissue. This is a stellar region. ये एपिडर्मल रीजन और ये कॉर्टिकल रीजन जिसमें कि स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा all are present. And below the ridges, जहाँ ridges है वहां पर epidermis के नीचे more sclerenchymatous tissue और hypodermis is present, which is sclerenchymatous. And stomata are present in the stem because it is green and perform the photosynthetic activity. You can see here, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ये स्टोमेटा है ना, the stomata slightly sunken है ना, बहुत deep नहीं होते हैं. Cuticle is all together present. Below epidermis जहाँ ridges हैं वहां पर hypodermis है, thick walled cells hypodermis. And rest cortical regions are chlorenchymatous. Chlorine means having chloroplastic tissue. They perform activity of photosynthesis. This is a stellar region, consists of endodermis, pericycle, and phloem and xylem are present in the bundle form. Cambium is also present. ये cambium के layer है और ऊपर phloem और अंदर xylem. Because secondary growth is present and pith is massive, काफी अच्छी होती है young stem में, and this is made up of parenchyma without intercellular spaces. Yes, Suhani. हाँ. TS of old stem. It is a single layered, heavily cuticularized epidermis. The cortex is also differentiated into sclerenchyma, chlorenchyma, and parenchyma. Presence of vessel is the characteristic feature of the wood of ephedra. Resin canals are absent. Parenchymatous pith is present in the center. Here you can see, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट यू कैन सी हियर, ये क्यूटिकल है अपर लेयर में, एपिडर्मिस है, स्क्लेरेन्काइमा बिलो द रिजेस है जो कि हाइपोडर्मिस बनाती है. इसमें स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा तीनों में डिवाइडेड होती है और ये सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है. दिस इज कैम्बियम. आउटसाइड इट फॉर्म्स द सेकेंडरी फ्लोएम और जिस समय सेकेंडरी फ्लोएम बनती है एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल इरेप्ट हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है या क्रश हो जाती है. ये सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन है जिसमें आप वेसल्स को क्लियरली देख सकते हैं, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इसमें ये रेज भी बनती है, मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन होता है. प्राइमरी जाइलम केवल पित्त के रीजन में थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है और जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्रस्ट. और ये जो कॉर्टिकल रीजन है यहीं पर कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है जो कि बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है. इसको हम पूरे रीजन को पेरिडर्म कहते हैं. तो इसमें कॉर्क का फॉर्मेशन होना जब ये ज्यादा ग्रो कर जाता है तो ये क्लियरली दिखाई देता है. Leaves. Leaves are small, scaly, present in pairs at the nodes and are arranged in opposite decussate manner. These leaves unite at the base to form a basal sheath. Each leaves contain two unbranched parallel veins. They are so minute that they are no use, unable to perform photosynthesis. The function of photosynthesis is carried by green stem. True foliose leaves are absent. हाँ, फॉलिएज लीव्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी पत्तियां. ये आप देख सकते हैं, ये व्यू दिखाया, ये लीव्स हैं. दीज आर स्केली टाइप ऑफ लीव्स. ये स्टेम है, स्टेम में नोड इंटरनोड है. ये देख रहे हैं आप, पेपरी टाइप ऑफ लीव्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. ये दीज आर लीव्स जो कि बहुत हाथ में लेके दिखाया गया है. दीज आर माइन्यूट एंड कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो केवल शीत की तरह से दिखाई देती हैं ये और नोड्स पे प्रेजेंट होती हैं.
The transversal section of scaly leaf is oval in the form and may be differentiated into cuticle, mesophyll tissue, and plant tissue. You can see here, this is the leaf, जो कि भले ही फ्लैट और पेपरी है, but it has some region of photosynthetic tissue, that is palisade. And this is palisade tissue written over here. Cuticle is present, sunken stomata are there. Epidermis is continuous and erupted by the stomata, presence of stomata. Stomata बहुत कम होते हैं number में. And below the stomata, this is palisade tissue, and inner to that is spongy parenchyma. तो कुछ फंक्शन ये फोटोसिंथेसिस का करती है, अदरवाइज स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज vascular tissue. Two bundles are present, which comes from the leaf trace, from the stem, and phloem and xylem. Phloem towards the upper and xylem towards the lower side. So this is about the leaf. हाँ, रेस्ट अभी आगे आपको बताएगी. Yes. Epidermis. It is outermost single layer and thick-walled elongated cell. The cell's area unit lined with thick cuticles. Sunken stomata area unit gift. Mesophyll tissue. 2 or 3 layer of palisade tissue area unit gift inner to cuticle. The cell's area unit crammed with plastid and hug. Animate thin area unit gift between them. Within the center of the leaf parenchymatous tissue is gift. अब ये जो लिखने के समय किया गया है, ये गिफ्ट जो है जहां से हमने लिया है वहां पर ये लैंग्वेज में बनाया जाता है. यानी अगर आप इसको कॉपी करके पेस्ट करें तो ये लैंग्वेज देता है गिफ्ट. तो यू हैव टू सी दैट व्हाट इज इट, है ना. विद इन द सेंटर ऑफ द लीफ पैरेंकाइमेटस टिश्यू इज प्रेजेंट. इट इज नॉट गिफ्ट. यहाँ जहां जहां ये प्रेजेंट है, PRESENT. ये इसलिए कि अगर आप कॉपी करें कहीं से कंटेंट तो ये बता देगा कि आपने कॉपी किया है. ओके. Yes. Vascular tissue. 2 vascular bundle areas unit embedded within the parenchymatous tissue. The vascular bundles area unit collateral and closed. Vascular tissue is present towards the side. Right. Root. There is a prominent underground taproot system. Later on, the adventitious root develop. Many root hair are present, but there is no mycorrhiza. हाँ, यूजुअली क्या होता है कि जो एफिड्रेल्स ऑर्डर है उसमें माइकोराइजा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता. और इसकी रूट जनरली टैप रूट सिस्टम होती है, लेकिन जल्दी ही वो एडवेंटिशियस रूट से चेंज हो जाती है क्योंकि टैप रूट ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती. और डाइकॉट रूट सिस्टम इसमें, यानी अगर हम पढ़ें तो डाइकॉट जैसी रूट प्रेजेंट होती है, लेकिन बाहर से देखने पे ये रूट कंटिन्यूअस रूट नहीं दिखाई देती, ये रफ रूट दिखाई देती है. यानी बिल्कुल सर्कुलर नहीं होगी आउटलाइन, तो ये रूट के कुछ पोर्शंस हैं. तो इसकी एनाटॉमी डाइकॉट रूट जैसी ही होती है, यानी डायआर्की, ट्रायआर्की और टेट्रार्की प्रेजेंट हो सकती है अलग अलग स्पीशीज में. तो इसलिए रूट का स्ट्रक्चर मैंने एनाटॉमी नहीं दी है इसमें, उसको हटा दिया था क्योंकि वो आपने स्टेम वाली एनाटॉमी ऐड कर दी थी इसमें. तो यू कैन डील विद द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और रिप्रोडक्शन विल बी डेल्ट बाय निहारिका. यस. Okay. Economic importance of ephedra. Ephedrine, an alkaloid obtained from several species of ephedra, is used in the preparation of medicine for treating asthma, कफ, bronchitis, ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियोल्स में डिजीज का होना, और कफ तो आपको पता ही है, cold, nasal disorder, hay fever, and also used to treat kidney disorders. Or decoction of stem and roots of several species is used in curing syphilis. सिफाइलिस होता है एक तरह का फीवर. एंड रूमेटिज्म होता है घुटनों में सूजन हो जाना. Ephedra Gerardiana tincture is effective as a cardiac and circulatory stimulant. Blood circulation में help. Rhizome of Ephedra Gerardiana is used
as fuel by the people of Tibet. तिब्बत। Some species are grown as ornamental plant. ओके, अब कुछ पोर्शन सुहानी ने ऐड किया है इसमें, जो नई डील करेगी। ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है, आई थिंक निहारिका विल डील विद, लेकिन इतना समझ के कि एफिड्रा इज डायोशियस, एंड ये अच्छी है साइकिल भी कोशिश की है ऐड करने की। तो दिस इज अ जनरल साइकिल of a plant, flowering plant. So ephedra is treated as flowering plant but having the naked seeds. तो we cannot deal है, इसमें covered seeds है, तो ये dicot plant का reproduction है, इसलिए इसको skip कर रहे हैं। Okay, this is the reference taken by Suhani. Okay, say thank you. So I'll shift. Thank you. Okay, nice presentation, अच्छा prepare किया है। Okay, then Niharika is ready. Yes, ma'am. Okay, I'm sharing your slide. So you have to deal like this, क्योंकि आज वो presentation show नहीं कर रहा है WPS में, तुम्हें दिख रहा है? Yes, ma'am, दिख रहा है। हाँ, बस ये ऐसे ही करना पड़ेगा, मैं 1 by 1 शिफ्ट करूंगी, आज वो presentation show नहीं कर रहा है। ओके, चलो। ओके मैम। जय हिंद मैम, जय हिंद एवरीवन। आज हम एफेड्रा रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एफेड्रा आर डायोशियस, मींस 2 sex organ are present on different plants. Ephedra is heterosporous, that is 2 type of spores, microspores in male flower and megaspore in female are present. The male and female flower are present in form of cone like compound, male and female strobili respectively. This is the structure of male strobili. ये एफेड्रा का मेल कोन है। इसमें एक कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म, ये कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि इसके टॉप लीफ के एक्सिल में डेवलप होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो फाइलोक्लेड स्टेम होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक शो करेगा, शूट लाइक होंगे और ग्रीन सॉफ्ट नोट प्रेजेंट होगा, बेस पोर्शन बाइस्पोरेंजिएट होंगे। Each stimulus develop in the axis of a scaly leaf. It bear about 2 to 8 or 12 pair of rather thick bracts or scale arranged decussation short axis. इसको बोलते हैं डेकेसेट लॉन, मतलब डेकेसेट मैनर में। डेकेसेट मैनर क्या होता है? एक दूसरे के ऑपोजिट। And this is the structure of single male cone. एक सिंगल मेल कोन होता है, इसको जूम करके लगाई हो तो वो ऊपर का हट गया है। सबसे ऊपर ग्रीन कलर का दिख रहा है वो माइक्रोपाइलर रीजन होता है। माइक्रोपाइलर रीजन मतलब जहां से ग्रेना डिस्पर्स होंगे, माइक्रोस्पोर निकलेंगे ओव्यूल में, और पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन के लिए पॉलन चैम्बर में जाएगा। तो सबसे ऊपर माइक्रोपाइलर रीजन होता है। काफी सारे ब्रैक्ट्स मिलकर स्केल लाइक के कोन बनाते हैं। कोन के एक्सिल में एंथर फॉर्म होंगे, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक सिंगल मेल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट गया, ये है इसमें, है ना, ये एंथर्स हैं, ये जो ब्लू कलर के बनाए हुए हैं, और ये ब्रैक्ट्स की एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और हाँ, यस, ये एलएस ऑफ मेल कोन, इसमें सारे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, स्केल लाइक होंगे जो कि मेल कोन का स्ट्रक्चर बना रही है। ब्रैक्ट्यूल्स है जो कि अंदर से माइक्रोस्पोर को कवर कर रहे हैं, और माइक्रोस्पोरियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो ये एलएस है मेल कोन का। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, जैसे हायर प्लांट्स में ये दिखाई देती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, उसी तरह से इसमें भी पॉलन ग्रेन्स, मतलब जहां पॉलन ग्रेन्स बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, वो एंथर लोब्स के अंदर है। तो इट इज वेरी क्लियर लाइक डाइकॉट प्लांट्स। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल मेल कोन ब्रैक्ट्स। ये ब्रैक्ट्स का डायग्राम है जो कि जूम करने पे दिखाई देता है। इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, स्टॉक होता है, ब्रैक्ट्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक ब्रैक्ट्स का डायग्राम है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। Each microsporangium is usually bilocular or trilocular. Each locule is surrounded by simple layer epidermis, middle wall layer and inner tapetum, which is utilizing the formation of spores. ये डेवलपमेंट है।
इसका डायग्राम है। टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा लेटरल हो गया है, कोई बात नहीं, बता सकते हैं आप। ये डेवलपमेंट है। यहाँ पर देखिए, ये केवल सिंपल टिश्यू है जिसमें आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है 2 प्लेस पे, है ना, क्योंकि ये बाइलोब्ड होता है। तो यहाँ 2 जगह आर्कीस्पोरियल सेल बनेंगी जो कि प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगी। और प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में जब डेवलपमेंट होता है तो लेयरिंग होती है, यानी आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होती है तो आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर्स बनाती है। तो इनर मोस्ट स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसके बाहर टेपिटम यानी न्यूट्रिटिव लेयर है, उसके बाद मिडिल लेयर है और आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है पूरी एक माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो ये पूरी एक माइक्रोस्पोरेंजियम एनलार्ज दिखाई है। और स्पोरोजिनस टिश्यू अल्टीमेटली डिवाइड होते हैं मियोटिकली, मियोसिस से 1 डिवीजन 2 डिवीजन, और एक स्पोरोजिनस मदर सेल क्या बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर। तो इसमें डाइकॉट लाइक डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से शो किया है। और एक सिंगल माइक्रोस्पोर या सिंगल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया है। इसमें एक्साइन, इंटाइन और न्यूक्लियस। Female cone. Female cone are similar to male cone. It is also known as female stimulus. It is heavier and smaller in comparison to male stimuli. This is the structure of female cone. ये एक female cone का structure है। इसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो होता है लॉन्ग एंड ट्यूबुलर होता है, सेसाइल, एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर शो करता है। नोड्स पे जो है ये फीमेल स्ट्रोबुलस डेवलप होते हैं। दे मे बी इन द पेयर और 3 मे बी 3 इन नंबर। तो जहां पर नोड्स है वहां डेवलप होती है, लेकिन जो मेन स्टेम की नोड होती है वहां नहीं डेवलप होती है, साइड ब्रांचेस की नोड्स पे डेवलप होती है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल मेल कोन। ये सिंगल मेल कोन का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर माइक्रोपाइलर ट्यूब, वहां पे माइक्रोपाइलर रीजन, यहाँ पे ट्यूब प्रेजेंट होता है। वहां पे माइक्रोपाइलर रीजन से माइक्रोस्पोर निकलते थे और यहाँ से निकलते नहीं थे। यहाँ पर एंट्री ऑफ माइक्रोस्पोर, यहाँ पर एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन होगी यहाँ से। तो ये केवल फीमेल कोन है। फीमेल कोन में ये जो अपर ब्रेड्स होती हैं ये फर्टाइल होती हैं, जिनमें की एक ओव्यूलर स्ट्रक्चर यानी सिंगल फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, और नीचे वाले जो 2 to 4 पेयर ऑफ ब्रेड्स होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं और कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको किप्यूल कहते हैं। एंड सेंट्रल एक्सिस इज प्रेजेंट। तो ये अपर रीजन में केवल एक जो फीमेल फ्लावर है दैट डेवलप्स विद द हेल्प ऑफ ऑल ब्रेड्स। देखिए आप टीएस देखेंगे आप तो थोड़ा और क्लियर होगा। ये एलएस थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। 2 ओव्यूल का डायग्राम है मैम ये। हाँ, ये एक माइक्रोपाइलर रीजन में एक सिंगल फ्लावर है और सिंगल फ्लावर में 2 ओव्यूल बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें आर्किगोनियम नहीं प्रेजेंट होती है ना, तो इसलिए इसमें ये 2 ओव्यूल का फॉर्मेशन एक ऊपर की तरफ जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां बनता है ना। तो ये इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड ओव्यूलर रीजन। थोड़ा सा वो बड़े हो गए हैं डायग्राम ज्यादा इनलार्ज करने में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 ओव्यूल्स का फॉर्मेशन है ना, 2 ओव्यूल्स, या कह सकते हैं इसको कहते हैं कि 2 आर्किगोनियम आर फॉर्म्ड। वेंटर कैनाल सेल है और एग सेल है। लेकिन इसमें क्लियर कट नेक सेल्स नहीं होती, लिड सेल्स नहीं होती। इस तरह से ये बहुत ही रूडिमेंट्री टाइप ऑफ आर्किगोनिया आर प्रेजेंट इन एफिड्रा। ये इसके पूरे डेवलपमेंट का डायग्राम है। क्या डायग्राम डी मैम? डी नहीं, ए है डायग्राम। इसका डेवलपमेंट मेगा स्पोर ABCDE। हाँ, इसका डेवलपमेंट मेगा स्पोर मदर सेल से होता है। इसके बाहर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। बेटा न्यूसेलस हाँ, न्यूसेलस प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। बाकी इसका रिप्रोडक्शन में कोई रूल नहीं होता है। ये देखिए बेटा ऐसा है कि ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होती है मियोटिकली,
है ना, ये टेट्राड बनाती है, स्पोर टेट्राड, और जो ऊपर वाले स्पोर टेट्राड होते, ऊपर वाले स्पोर्स होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं और एक एक्टिव होता है, या कभी कभी दो भी एक्टिव होकर के डेवलपमेंट शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये गैमेटोफाइट के, फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में एक या दो मेगास्पोर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनिशियली एक करता है तो वो न्यूक्लियर डिवीजन करता है, फिर उसके बाद सेलुलर डिवीजन इसमें होता है। तो ये जो दिखाया जा रहा है ये एक मेगास्पोर में है ना, तो इस 4 मेगास्पोर बनी है तो 4 में चारों भी फंक्शनल हो सकते हैं। डाइकॉट प्लांट्स में केवल एक फंक्शनल होता है, इसमें चारों फंक्शनल हो सकते हैं, तो इसको हम न्यूक्लिएट मेगास्पोर कहते हैं। तो न्यूक्लियस के साथ एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसमें, फॉर्मेशन करता है। और ये फर्दर डिवाइड होके 18 न्यूक्लिएट 16 न्यूक्लिएट गैमेटोफाइट, हाँ 16 न्यूक्लिएट गैमेटोफाइट बनाएंगे। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलएस ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल का डायग्राम है। ऊपर क्या दिख रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन, सबसे ऊपर माइक्रोपाइल है इधर जो बनाती है ना, और माइक्रोपाइल जहाँ खत्म होता है वो पॉलन चैम्बर है। जब पॉलन डिस्पर्स होते हैं, पॉलिनेट होने के बाद यहाँ आकर के सबसे पहले रेस्ट करती हैं। नीचे आर्किगोनियम है, जो भी हम लोगों ने डिटेल स्ट्रक्चर देखा था, 2 आर्किगोनियम जिसमें एग सेल प्रेजेंट है, और ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट है नीचे, जो कि मेगास्पोर से डेवलप हुआ है। एंड दिस इज हॉस्टोरियल रीजन। जब तक कि कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक ये हॉस्टोरिया से फूड मटेरियल लेते रहते हैं। सो दिस इज एलएस ओव्यूल। इसमें माइक्रोबाइलर रीजन बहुत इलोंगेट होता है, जस्ट लाइक डाइकॉट प्लांट्स। Development of male gametophytes. Microspore is the first stage of male gametophytes. This unicellular uninucleate elliptical microspores start their germination of the form the male gametophyte. माइक्रोस्पोर का मतलब क्या हुआ? pollen grain. We are talking of pollen grain. मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शो किया है। थोड़ा टेढ़े हो गए हैं डायग्राम, शायद लेने में गड़बड़ हो गई। इसको अब घुमा नहीं सकते, अगर घुमाएंगे तो पूरी स्लाइड घूम जाएगी। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ से आप देखिए ये डेवलपमेंट शो किया गया है मेल गैमेटोफाइट का। तो मेल गैमेटोफाइट का मतलब एक पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ये 2 सेल्ड स्टेज बना है, प्रोथैलियल सेल एंड द बॉडी सेल। प्रोथैलियल सेल फिर डिवाइड होके 2 सेल बनाती है, अपर सेल एंड द सेकेंड प्रोथैलियल, फर्स्ट प्रोथैलियल सेल, सेकेंड प्रोथैलियल सेल। और जो बॉडी सेल होता है इसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद ये क्या बनाती है? दिस फॉर्म्स द ट्यूब न्यूक्लियस एंड द जेनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस आगे जर्मिनेट करके ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब, और जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो क्या बनाएगा? मेल गैमीट्स बनाएगा, मेल न्यूक्लियाई बनाएगा ये जो है। और ये जर्मिनेशन के बाद, ये तो पूरा डिवीजन है, ये लास्ट मैंने बता दिया आपको। इसके बाद ये स्टेज, फिर ये स्टेज। और किस स्टेज पे होता है? ये 3 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन होता है, यानी जब प्रोथैलियल सेल्स और एक बॉडी सेल होती है उस स्टेज पे ये पॉलिनेट कर जाता है। और बाकी का जर्मिनेशन जो है पूरा, यानी डेवलपमेंट कहाँ होता है? पॉलन चैम्बर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। फीमेल गैमेटोफाइट्स। The functional megaspore enlarge their size and nucleus undergoes free nuclear division. In the center, a vacuole develops due to this. All free nuclei move to their periphery. ये वही है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। वहां तक हमने पढ़ लिया था मेगास्पोर का बनना, है ना। और मेगास्पोर के बाद का डेवलपमेंट ये है कि मेगास्पोर में अब डिवीजन होता है, तो ये बाहर की तरफ मेगास्पोर के न्यूसेलस होता है जो उसको डेवलपमेंट में हेल्प करता है, अपर सेल एंड लोअर सेल। तो यहाँ पर ये 2 सेल बनती है, फिर 4 सेल बनती है, तो ये 4 टेट्राड मेगास्पोर बन गया। अब एक मेगास्पोर का फंक्शनल दिखाया है। 1 मेगास्पोर फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट। पहले ये 2, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन में 4, फिर थर्ड डिवीजन में 8। तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज फॉर्म होती है इसमें, जिसमें से ये किस तरह से डिवीजन होता है? 3 सेल्स जो है वो एंटीपोडल्स बनाती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और बाकी नीचे एग एपरेटस बनता है जिसमें 1 एग और 2 सिनर्जिड्स होती हैं। तो ये हायर प्लांट्स की तरह डेवलपमेंट शो करता है, इसीलिए एफिड्रा को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कहते हैं। Yes, ma'am. Yes, fertilization. Fertilization means, ma'am, 1 minute.
ओके Yes. हाँ Fertilization means fusion of male gametes with egg that is take place with the help of pollen tube known as Siphonogamous type. साइफेनोगैमस यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो हॉलो ट्यूब होती है, तो साइफेनोगैमस टाइप pollen tube. Pollen tube enter into their archegonium through हाँ. their neck cell and हाँ. burst the tip in the egg cell, and one male gametes fuse with egg from zygote. Form the zygote, to form the zygote. तो मेल एंड फीमेल के फ्यूजन तक लिया है, और इसकी साइकिल की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि लाइफ साइकिल रेयरली पूछी जाती है. तो दिस इज ऑल अबाउट. थैंक यू वाली स्लाइड नहीं आई है और रेफरेंस नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन लिया गया है. मैं भी इसमें एडिट नहीं कर सकती थी बिकॉज आई डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू एडिट योर स्लाइड, इसलिए मैंने सुहानी की तो एडिट की थी लेकिन आपकी नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं है, रेफरेंस जरूर ऐड करेंगे सब लोग. ओके, कंप्लीट है लगभग प्रेजेंटेशन, सो आई एम स्टॉप शेयरिंग. अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू मे आस्क. आई थिंक few seconds are left for the presentation. 1 minute is left. किसी को कुछ पूछना है आप लोग ऑन करके पूछ सकते हैं. तो both the presentation were very good. Suhani and Niharika, clapping from my side. Congratulations. Thank you, ma'am. Okay. Yes, I have 3 minutes. किसी को कुछ पूछना है? Any queries? आप लोगों के बैच में रिचा ने डिसकंटिन्यू कर दिया है क्या, अगर आपको पता हो तो? क्योंकि रिचा ने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, रिचा गुप्ता, क्योंकि कल का प्रेजेंटेशन संध्या और रिचा का है. सरगम या पल्लवी, आप में से कोई बताए? पता नहीं मैम, कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में. रिचा के बारे में, अच्छा. और एक अनुराधा, 2 बच्चे हैं, इन लोगों के बारे में नहीं पता है शायद मैम. अनुराधा के पास तो एंड्रॉइड फोन नहीं है शायद, ऐसा कुछ. अच्छा, वो कनेक्टेड नहीं है तुम लोग के ग्रुप में? नहीं. अच्छा, क्योंकि मेरे ग्रुप में तो कनेक्टेड है वो, उसमें अनुराधा है, मैंने मैसेज किया है उसको क्योंकि इसका व्हाट्सएप नंबर हम लोग के मेन ग्रुप में है. हो सकता है फादर का हो या ब्रदर का हो, आई डोंट नो. अच्छा, और निकिता अभी नहीं अटेंड कर रही है, लेकिन निकिता के पास तो स्मार्टफोन है लेकिन क्लास नहीं अटेंड कर रही है. मैंने उसको मैसेज किया है तो उसने कहा है कि मैं दे दूंगी प्रेजेंटेशन. चलिए ठीक है. आई थिंक निकिता नहीं, आज भी नहीं अटेंड की, आज के लिए मैंने कहा था. ओके, एनीवेज चलिए. ओके, सो आई एम लीविंग, क्लोजिंग दिस मीटिंग. जय हिंद सभी को, कल मिलते हैं आपसे.